Namaskar. This is Alok. I'm 24/7 serving for Manovikas family with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disability and the caregiver of Manovikas family, I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to Manovikas episode 48.12 episode, the 48.12 episode. This is a live consultation for persons with intellectual and developmental disabilities during this coronavirus outbreak. We welcome you all. And just yesterday we had celebrated the World Cerebral Palsy Day. So I would like to congratulate one you all on the day of on the World Cerebral Palsy Day. We would like to congratulate all of you. And मशवरा के इस 48वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का एक माध्यम है। I welcome all our guests and audience. Today we are going to talk about the good practices of self advocacy. स्वयं की वकालत करना, स्वयं के लिए हिमायत करना, उसके उत्तम प्रयास के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। The term self advocacy, while literally meaning an act of speaking up for oneself and one's interest, is used as a name of civil right movement, or we can say this is the mutual aid for networking of persons with disabilities. Self-advocacy is a skill which I understand and that enables any persons, that either it is kids or youth or persons, to understand their strength and weakness and to know what they need to succeed and communicate that other people should know about all these things what the person wants to do or wants to say. स्वयं की वकालत करना या हिमायत करने का शाब्दिक अर्थ है स्वयं के या किसी और के हित के लिए बोलना। इसका उपयोग मानव अधिकार आंदोलन और दिव्यांगजनों के लिए पारस्परिक सहायता या नेटवर्क के रूप में किया जाता है। स्वयं की वकालत करना एक कौशल है जो बच्चों, युवाओं और सभी व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है। यह खुद की ताकत और कमजोरी को भी समझने में हमें सक्षम बनाता है। हमें पता होना चाहिए कि सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए कैसे हम अन्य लोगों से संवाद स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें स्वयं की वकालत के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल। और हमारी बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज में आज हम स्वयं की वकालत के उत्तम प्रयास जो हैं हमारे आज के जो वक्ता हैं उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे, चर्चा करेंगे। This Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers and professionals during this coronavirus outbreak. यह मशवरा परामर्श हम सभी के लिए है और हम आप सभी से ये कहते हैं कि आप हम हमारे साथ जुड़े रहें, मशवरा करते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। मशवरा लाइव मशवरा series is for all. Please circulate and join together. And we have been doing this mashwara since 30th April and this is our 48th episode. I would like to announce here that we and also request you all, please save the date for our Golden Jubilee episode of Mashwara on Wednesday, October 14, 2020. अगले ही बुधवार के लिए आप अपना डेट जरूर निश्चित करें, आप अपने कैलेंडर को मार्क करें कि आप सभी हम सभी मिलकर मशवरा के गोल्डन जुबली एपिसोड को सेलिब्रेट करेंगे अगले बुधवार को। और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत सारे प्राइजेस, 500 अबाउट प्राइजेस, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स रखा है आप सबों के लिए। आप हमारे साथ क्विज में जुड़ें, आप हमारे मशवरा अवार्ड प्रोग्राम में जुड़ें, आप हमारे वॉलंटियरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो आप mashwara.live जो हमारा वेबसाइट है वहां से आप हमें लिख सकते हैं, आप उस फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। I once again welcome and appreciate our special guests to join this Mashwara Live. This episode is bringing you a very important topic and this is my pleasure to welcome our speakers today, Madam Sudipta Mishra. She is a special educator and she herself has a cerebral palsy and she is working in Open Learning System Bhubaneswar. And we have another expert, Mr. Sonu Bhola. He is a center expert of Samartham.
Samartham is working on the skill development in all over country, and he is center head for Delhi state. And then we have Mr. Nitin Taneja. He is a admin global group person with disability. And we welcome all our experts, all our speakers. And today this session is presided by our president and our mentor, Dr. Nimesh Desai sir. So we welcome you, sir, and we welcome our uh, special invitee and our mentor, Mr. JC Gupta sir. And we have sign language interpretation by Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे एपिसोड के जो विशेषज्ञ हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं डायरेक्ट डॉक्टर देसाई सर के पास जाना चाहूंगा कि आपका जो ओपनिंग रिमार्क्स है सर, वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। या नमस्कार। सबसे पहले सुदीप्ता और सोनू और नितिन को बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन तो हमारे रेगुलर साथी रहे, वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, एंड लाइक यू सेड ये एपिसोड हमने इनके लिए किया, बहुत अच्छा किया। मुझे विचार ये आया लोग कि एक्चुअली सेल्फ एडवोकेसी हम में से ज्यादातर लोगों को जरूरी होती है। वेरी ट्रू सर। सो हम दिव्यांगजन की बात करें सेल्फ एडवोकेसी की, वो बहुत अच्छी बात है, और उनका अनुभव और उनकी सफलता या असफलता और उनके कारण समझना अच्छा होगा। लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सेल्फ एडवोकेसी बहुत सारे व्यक्तियों को फायदेमंद हो सकती है, जरूरी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम न सिर्फ इन तीन साथियों की कहानी सुने, लेकिन हम साथ ये भी समझें कि ये अस और धैम की बात नहीं है कि जो दिव्यांग जन है उन्हीं को सेल्फ एडवोकेसी की जरूरत है। जहां जहां कहीं पावर इक्वेशन है, जहां जहां कहीं एक्सप्लॉइटेशन है या इवन डिस्क्रिमिनेशन है पैसिव, वहां पे सेल्फ एडवोकेसी जरूरी बनती है। तो इन तीन साथियों को सुनने से मुझे लगता है हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, दिव्यांगजन से संबंधित कम है लेकिन आम जनता और आम समाज से संबंधित है। सेल्फ एडवोकेसी कई बार इतना गंभीर स्वरूप ले लेती है कि समाज का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो जो बैलेंस है समाज का, वो भी हम सबको कहीं बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर 4 जने हैं एक समूह में, कहीं पे घर पे या कमरे में या एक ऑफिस में, तो एक व्यक्ति की सेल्फ एडवोकेसी शायद दूसरे के हक छीनने वाली बात हो जाए। बट वो हमारी सो कॉल्ड तथाकथित नॉर्मल सोसाइटी की बात है। जो दिव्यांगजन है, जो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट है, जिनके हक का उल्लंघन किया गया है, वहां सेल्फ एडवोकेसी बहुत अच्छी चीज है। और आत्मनिर्भरता जो है वो सेल्फ एडवोकेसी का अंग रहेगा। एक बार फिर जैसे कभी कभार होता है, आप सबसे और खासकर इन तीन साथियों से माफी चाहूंगा। 3:30 बजे एक वेब मीटिंग है जो मुझे लगता है 4:30-5 तक चलेगी, तो मैं शुरू की बातचीत सुन के मुझे जाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, लॉस मेरा रहता है हमेशा। जो सुन के कुछ सीखना समझना होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। बट एक बार फिर तीनों साथियों को, सुदीप्ता, सोनू एंड नितिन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड आलोक, एज ऑलवेज यू एंड योर टीम मनोविकास इज ग्रेट। गुप्ता जी की राबरी में और आप सारे कोर टीम, और 50वें एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। 49 में भी मिल रहे हैं सर। एंड 49वां एपिसोड जो है सर, उसमें जैसे हम लोगों ने पहला एपिसोड स्टार्ट किया था आपसे और रोमा कुमार जी से, तो मैंने रोमा कुमार मैम को भी बुलाया है कि 49वां एपिसोड में आप दोनों का होना जरूरी है, तभी तो 50 अच्छा से पूरा होगा। ग्रेट सर। और सर 50वें में आप पूरे समय के लिए रहेंगे। दोनों दिन पूरे समय के लिए रहूंगा, इंदिरा जी, प्रॉमिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, so before I'll go to Sudipta ji, in my view, I would like to, जैसे देसाई सर ने कहा कि जो सेल्फ एडवोकेसी है उसको हमें सही मायने में समझने की बहुत जरूरत है। अगर मैं सेल्फ एडवोकेसी देखूं तो वी हैव टू मेक द सम फ्यू की पॉइंट्स कि
जब कभी भी मैं स्वयं की वकालत या हम स्वयं की वकालत के बारे में सोचें तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक ओन नीड। जो आपका जो स्वयं का जो एक विशिष्ट आवश्यकता है, खुद की जो नीड है, उसको बहुत जरूरी है समझना। और दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आई कैन से, कि आपको खुद के बारे में अवेयर होना होगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। जो दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, नोइंग व्हाट हेल्प और सपोर्ट विल एड्रेस दोज नीड्स। लाइक कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, या हमें एड्स एंड अप्लायंसेस की जरूरत है, या हमें दवाई की जरूरत है, या हमें पढ़ाई की जरूरत है, या हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस जरूरत की नीड है, वो एक बहुत ही क्लियर होना बहुत ही एक स्वाभाविक हमारे साथ होना चाहिए जब हम सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बात करते हैं। और जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, कम्युनिकेटिंग दोज नीड्स फॉर अदर्स। लाइक अगर आपको वो नीड चाहिए, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं तो डॉक्टर को बोलना होगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर को बोलना होगा कि हमारी ये नीड है, अगर घर में है तो आपको फैमिली मेंबर्स को बोलना होगा कि ये हमारी नीड है। क्योंकि जो सेल्फ एडवोकेसी के बारे में है वो हम खुद जान रहे हैं, हमारे सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो उसको नहीं जान रहे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बात करें तो बहुत क्लियर कट हमारे पास एक पॉइंट्स होने चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है, हम किस चीज को, उस चीज की जो जरूरत है वो क्या चीज पूरा करेगा, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन आप क्या चाहते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है उस सॉल्यूशन को बोलना, उस सॉल्यूशन को कम्युनिकेट करना। आप जिस भी भाषा में कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी 3 मेजर पार्ट, एंड देन आई गो टू द सुदीप्ता मिश्रा जी। वी वेलकम यू। एंड मुझे लगता है कि इनसे ये जानना जरूरी है कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड मेकिंग योर ओन डिसीजन अबाउट योर चॉइस एंड अबाउट योर लाइफ टू ग्रो इन योर कैरियर, आपने जो अपने जीवन में कब से ऐसा, आप बचपन से या कुछ किसी ने आपको इंस्पायर किया है कि आप अपने जीवन में खुद अपना चॉइस बना सकें, अपने करियर के बारे में सोच सकें, उसके बारे में निर्णय ले सकें? कब से आपने ऐसा स्टार्ट किया? सुदीप्ता मिश्रा जी। नमस्कार, I'm Sudipta Mishra from Bhubaneswar, Odisha. Odisha am personal cerebral palsy. At present, I am working as a special educator in a school for open learning system, working for the person with cerebral palsy and intellectual disability. Before I go to answer the question which a doctor asked me to, I want to discuss few points about self-advocacy. Self-advocacy is speaking for ourselves, our friends who is non-verbal, help them to speak out. Who are non-verbal, we can give them a support so that they can communicate. Mentally children who is non-verbal have communicative ability. Through computer, they can express their feelings to alternative augmentative communication, but they can express self-advocacy to know about rights, to know about our rights and to fight for rights. Self-advocacy is to raise your voice mainly in our health, financial and legal. इन 3 मुद्दों जो बहुत
जरूरत है बहुत रेस करने की. After that, about our choices, about our feeling, about our need. This is very important to speak out. And every PWIDT should learn about it. Then I am going to my part. We belong to nuclear family. My father is a government servant. My mother is a housewife. I have a older brother and we are twin sisters. At the time of birth, my birth grade is delayed. That's cause due to lack of oxygen supply, that caused damage to my brain, and I am affected with cerebral palsy. At the age of 5, 6, my sister started going to school, whereas I have not started my studies yet. मेरे माता पिता जब मेरी पढ़ाई के बारे में सोचने लगे और सोचे इसको कहाँ भेजे, वो क्या स्कूल में केयर पाएगी, क्या टीचर उनको केयर करेंगे, बच्चे उसको धकेल देंगे. बचपन से ही मुझे थोड़ी सी बैलेंस की प्रॉब्लम थी. फिर मैं अपनी सिस्टर को देख के और जैसे पढ़ती है और जैसे लिखती है, I started writing by looking at the pictures involved in calendars. I started copying each and every word from the calendar that hang on the wall. Then my mother noticed she had wish to study, so they started my education by taking me school. They visited many schools with me for my admission. None of them are shown cooperative attitude to take me onto their school. Some said, why will we are going to take this kind of kids to our school? Our reputation going to be bad. Then, after rejection from many schools, I finally got admitted in a school. The teacher was kind enough. They used to take my test orally as my writing skills are affected. I cannot write quickly. Due to constant intervention of my father and mother, they tried to take my test orally. I was good. I get promoted to class 5.
and that the school who I'm reading that is up to only class 7. After that, they cannot accommodate me for 8, 9, 10, and they have no higher education facility. They have classes up to 7th standard. Then again, my father and mother started struggling and goes to school. School. Some said, we will not take this kind of child. Our reputation going to be bad. Then after lots of failure from school, finally I got admission in a school, modern public school. I affiliated, I got admission in class 8, 9. At the time of my 10th board, I was denied to give sitting board exam because my principal of the school is reluctant to give me permission to apply my 20th board. He said, no, you can take away your child. He's not at all good student. Our school have very good reputation. We come out very good mark each year. We don't have any failure students. So you take away a place. Again, due to request and constant efforts, still parents are choosing that is possible. By the help of them, I use my mother and father along with me took me to the Delhi and seek permission to sit in ICC board by providing me special ammunition. I get permission from ICC board, then show it to my principal, and that got my principal allow me to sit on the exam. And he took one undertaking from my father. If your daughter is going complete test with good mark, you have to give me certain amount for us. Then my father consulted to many for the principal of school is saying this. Then they don't know you should not give him a single pie for because you have done effort to for Sudipta to sit in that. What the principal does FC allow him. After that, he allowed by single letter from ICC board to sit in exam, and during at the time of my regular out, I was just and nervous throughout the day what going to my result.
My mother said, "We don't worry. We will give second. Second, we will give another day. इस बार खराब हो गया तो कोई नहीं, अगले साल हम बैठेंगे." Then I have got married. I have come out with 65% of marks. Then principal admits that she is a good student. She cannot write, then she answers everything. Then after that, I go to college. Went to college, did my plus two. After plus two, I have told my father that, "Papa, I don't want to study anymore. I want to go for vocational courses. I have seen the college life. I have experienced." And father told me, "Okay, let us try for women polytechnic in IT sector, information technology." Then I applied for women polytechnic on disabled quota. They rejected my form and they said that we will not take this kind of quota. Not have we not support you. We have not got any kind of circular. Sorry. Then again my fighting started. Generation of my father and mother, they fight for their battle in court. And next year in Polytechnic, they they send me invitation letter in at first topmost priority. As I already completed my graduation 1 year, I did not do women for admission in women polytechnic. Then I have completed my graduation. I tell you, 5 years in my college, in my golden period, I don't have fight for the writers. I don't want to tell anything. Just show the letter of 10 board how I have given the exam. On that basis, principal of the college agreed and allowed the special scribe to write an exam. So that I completed my graduation, then done many computer courses, and after that I work in special school as a computer instructor. Then I did my diploma in cerebral palsy, and now I'm working as a special educator. This is about my education. I now independently traveling everywhere in public buses, public cabs, and everywhere I travel in the city.
but one of the incidents I like to share when my experience was I started boarding to bus. Once of the experience I like to share the condition of bus did not allow me to sit in the seat which is allotted for persons with special needs. I was connected. Please let me sit in that seat. It is reserved. I am deaf. I'm person with special needs. Conductor just asked that person if he want to get that, then you can sit. Then I insist him politely, this seat is reserved for person who differently able. Please allow me to sit on it. He rudely replied, if you will sit here, then how will we sit? How come better? Then he started, why you bought this kind of person into the person? I politely said I have no issue, I can go by standing. You have no right to tell that. This is public bus. Everybody has right to travel in this bus. You sit and standing. Then after my shouting at the passenger, then only he stand up and sit and allow me to sit at the time of I am paying the money to conductor. Conductor say that no, madam, we can't take money from you. You travel fully. I said, allow me to sit. We are disabled. We are not beggars. We have ability to pay and treat us as a human first, like others. Okay, great. Sudipta ji, I can understand, I can feel it, your all the communication you did. But somehow we have to reverse, we have to be reverse. हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का कुछ मैसेजेस था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सुदीप्ता जी क्या बोल रही हैं. इन द मीन टाइम हमें कुछ अपने आप को भी प्रिपेयर करना होगा कि हम अपने दिव्यांगजन या जो भी व्यक्ति जिस भाषा में भी वो बोल सकता है, जिस तरीके से वो बोल सकता है, उसको प्रिपेयर करना होगा हमें अपने आप को कि वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इंदिरा जी, if you have noted some points of Sudipta ji, can you elaborate it or can you just brief it? Yeah. Excuse me, sir, my father is with me. Okay, that is great. Great. He Yeah, can summarize what Yes, please, welcome your father. Yeah, please. What's your name of the father? His name is Prashant Kumar Mishra. नमस्कार प्रशांत जी. नमस्कार मिश्रा सर. नमस्ते. या थोड़ा सा हमें क्योंकि हमारे कुछ
एक लोगों का था कि हम समझ में नहीं आया, बट हमें तो बहुत समझ में आया. हमारी टीम जो है मशवरा टीम, दे आर टेकिंग द नोट्स फ्रॉम यू, बट मिश्रा सर, इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ इट. या Okay, what she wanted to emphasize is her advocacy started from the age of when she was 5 to 7 years. 7 years. When my other daughter went to convent school, she constantly told us that I want to go to also school. So we prepared a bag, a notebook, a pencil, chalk, etc., and prepared her with her tiffin, etc., and we sent to a nearby government primary school. So that was his daily habit. Thereafter, when we came back to Bhubaneswar, so as she told that she was admitted only in a public school, private public school. But the principal was reluctant to take her because her writing skill was impaired. So we both, myself and my Mrs. counseled the teachers, principal. Not only this type of children, only by writing their skill cannot be assessed. Their verbal disposition also can be taken to assess his standard. So accordingly, they were convinced and they took her verbal test and admitted. So she constantly pursued her class teacher to participate in co-curricular activities like debate, drama, and that drawing competition and sports, etc. She participated and won some prize also. We went on encouraging her. And when her primary education was completed, she has to take him to a high school where they are also reluctant to take her. So we emphasized. By that time, PWD Act 1999 was enacted. That was a provision that government granted. Schools having government granted and grants from other agencies where government has supported, they have to take this type of children on priority. So when they were apprised of the provisions, so they somehow agreed to take her. And in class 10, the principal told me that you give me an affidavit, informal affidavit, that if he doesn't score more than 50% of marks in test examinations, she will be taken back. So I agreed to it, and after while submitting, I asked that the principal to acknowledge the receipt of the affidavit. When he acknowledged that, thereafter I told him that with this document I am going to the High Court because you are contravening the provisions of the fundamental rights, constitutional provision, because you are putting an embargo on the citizen of India to be educated in India where government has providing grant assistance. And if you say that only meritorious students can read and non-meritorious student has no right to read, then it is okay. The law will take its own course. So he was afraid and requested me, sir, please, I want to return back that undertaking. Affidavit, you take back this thing. I will not ask you anything. So she continued there. While appearing examinations, we wanted to have, because her writing skill was impaired. So I wanted an assistance of a writer. So the principal told that a student lower than her class will be her writer. And I was just accepting the decision of the principal. Thereafter, she told the principal, sir, the person who is from a lower class cannot be acquainted with my accent. He cannot understand.
When I will say Akbar, he will say write Babar. So that will be obviously a mistake. She volunteered and told the principal like this. So principal again called me and discussed. But yes, that is the problem. He is having a speech problem, and if his speech is not clear and the person, the student is child like class 5 to 6, 6 to 7 years, a 7th class, cannot be proficient to accept it and write what he exactly meant. So then what is to be done? It is the rule. So we have to move to ICSE board, and I got for the first time in Odisha, she got a special writer from a special school who is who will conversate with the accent of this type of children. So that process continued in college also. And about Polytechnic, she described that Odisha Polytechnic denied her admission because she has disability more than 45%. So she just told me, just showed me the letter why they have rejected it. I took up the matter with the principal. She told this is the provision, we cannot take her. So we take the matter to the department, industry department. They have also the same opinion. So we presented it in a form of a case petition before the National Disability Commissioner. National Disability Commissioner asked the government for a para-wise comment. And thereafter, when the para-wise comment was under consideration, government amended the provision and made it instead of shall not persons having disability more than 45% cannot be admitted. They can be admitted. So they have modified the brochure. Next year, for a trial sake, we applied, and on the first chance, Sudipta was selected to be admitted in that organization. By that time, her final year was approaching in the Ramadevi Women's College, so she did not take admission. She also, in class also, when other students, they are very much negligent in preparing their lessons, what has been taught today, she was quite sincere and obedient. And every day she will come when she came back from the college, asks me to explain what has been taught to the class. So I used to explain the topic in a simpler language, so he understands it. In the next class, when lecturer asks in general class what has been taught yesterday, nobody answers and she only answers it. So she was a pet student of all the teachers. Ultimately, principals also agreed, and he appeared with a special amenities. Ultimately, he passed her BA with graduate honors and distinction. Thereafter, she took vocational courses and joined Open University. Yes, computer. She has many. PGDC, PGDCA, web designing, and many courses in the computer skills. Now she has on her own. He has done diploma in cerebral palsy and been working as a special educator. And outside also, she is organizing the students who have been deprived by advising those who are not aware of the principles or benefits are available for them for higher education, etc. And on his advice, on her advice only, about a dozen of students they have passed matriculation, passed intermediate, and also passed graduation. So that is her achievement. What he has described, that is in nutshell. When the experts and doctors told that he cannot read, it is
her willpower and her interest, which made her educated and secured a place in the society to stand alone. Thank you. Perfectly. This is somehow we can see the success and here the self advocacy works. यहाँ पर हम self advocacy की बात करते हैं कि अगर मुझे पढ़ना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, तो व्यक्ति को खुद पहले एक बार बोलना होगा कि मुझे क्या करना है। तभी आपके साथ आपके माता पिता, तभी आपके साथ सब कोई चल पड़ेंगे। या फिर जो व्यक्ति हमारे दिव्यांगजन की बात नहीं समझ सकते या फिर वो नहीं बोल पाते या कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो वो उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो एहसास है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं वो। और हमने देखा कि सुदीप्ता के फादर ने कितनी लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने लड़ाई लड़के सिर्फ एक अपनी बेटी के लिए ही काम नहीं किया। अगर जो भी कोर्ट के जजमेंट वो सारे चीज सिर्फ और सिर्फ सुदीप्ता के लिए फायदा नहीं हुआ, वो बहुत सारे लोगों के लिए फायदा हुआ। सो ग्रेट एंड कुडोस टू सुदीप्ता जी एंड मिश्रा साहब, आपको दोनों को बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। और मैं इसके साथ मैं जाना चाहूंगा सोनू भोला जी के पास, और आप सबके पास कोई आंसर हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखेंगे। It is important to understand when self advocacy is useful. ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो स्वयं की वकालत करना है वो कब उपयोगी होता है, कब वो यूजफुल होता है। When you want to be listened to, be assessed or making a complaint, developing or reviewing a care plan, जब आप कुछ सुनाना चाहते हो किसी को, तभी सेल्फ एडवोकेसी बहुत जरूरी है। जब आपका कोई मूल्यांकन हो रहा हो, जैसे सुदीप्ता ने एग्जाम देना था उनको, तो उनका मूल्यांकन होना था, उस समय भी सेल्फ एडवोकेसी सुदीप्ता की बहुत अच्छा काम आया कि नहीं, हमें तो ये चाहिए। सो व्हेन एनीबडी इज असेसिंग यू, एनीबडी इज मेकिंग योर any kind of remarks or any kind of reports, you have to tell about the कि हमें किस प्रकार की सहायता की जरूरत होती है। अगर आपको कोई कंप्लेन बनाना हो, कोई सुझाव या कोई शिकायत करना चाह रहे हैं, तभी भी सेल्फ एडवोकेसी की उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। या फिर कोई आपके लिए देखभाल की योजना बना रहा हो, तब भी सेल्फ एडवोकेसी की उपयोगिता बहुत जरूरी होती है। देयर आर मेनी प्लेसेस, मैं पहले भी बोला था कि बहुत ऐसे जगह है वहां पर हमें बोलने की जरूरत होती है। जैसे आपको घर में ही आपको बोलना होगा, लेकिन कैसे बोलना है, जो अभी निमेश जी देसाई सर ने बोला कि ऐसा होता है कि कभी कभी हम सेल्फ एडवोकेसी करने के समय में दूसरे का भी हक छीन लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम वर्क या स्कूल्स या हॉस्पिटल्स, कोई भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूं, उसके सब सर्विसेज, द मेनी थिंग्स यू वांट कि दैट शुड बी चेंज्ड, anything to help to change it, so nobody else knows कि what you feel, so आपको ये चीज खुद निर्धारित करना होगा। what you think, what you need, you have to tell the people how you are happy, what you don't like, what kind of change you like. so बहुत ऐसी जगह है जहां पर आप बोलना चाहते हैं, या वो घर हो या परिवार हो या कामकाज की दुनिया हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, वहां पर हमें अपने मांग के बारे में बोलना चाहिए कि हमें क्या चीज चाहिए। यदि आप कुछ काम करने के तरीके से खुश नहीं है या उसको बदलने में आप कोई मदद चाहते हैं, तो वहां भी हमें बोलने की जरूरत है। कभी कभी कोई यह नहीं जानता, मैं कहता हूं कि कभी कभी क्या बहुत ऐसे समय होते हैं जब कोई यह नहीं जानता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, या यह आपको लोगों को बताने की जरूरत है। और आप कभी खुश हैं या आप कुछ बदलाव चाहते हैं, यह भी बताने की जरूरत है। तो मैं जाऊंगा हमारे सेकंड स्पीकर के पास, सोनू भोला जी के पास। एंड I required कि थोड़ा सा टाइम पे हम स्टिक करेंगे। So सोनू भोला जी, do you remember the first instance or any incident that made you feel about your strength and taking about the decision for the change? आपको कभी कोई ऐसी घटना याद हो जिससे कि आपको लगा होगा कि ये मेरे अंदर तो ताकत है, ये मेरे स्ट्रेंथ है, और आप फिर उस चीज को सोचकर कोई बदलाव लेने का या बदलाव करने का फैसला किया हो, तो हम वो कहानी आपसे जानना चाहेंगे। सोनू भोला जी। थैंक यू सर। बहुत छोटी सी
चीज है कि जिस तरह हम भी स्टूडेंट्स थे पहले, जैसे किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि 2001 में मैं 12th क्लास का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और हमें मालूम चला कि दिल्ली सरकार कुछ स्कॉलरशिप ऑफर करती है विकलांग व्यक्तियों को, और वो हर साल के हिसाब से पैसा मिलता है। हमें एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म को एमएलए से अटैच करा के, स्कूल के प्रिंसिपल से अटैच करा के उसको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर में जमा कराना होता था। आजकल तो खैर ऑनलाइन है। तो एक हमारा ऑफिस था सोशल वेलफेयर का, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मयूर विहार में, और वो ऑफिस 3rd फ्लोर पे था। तो जैसे ही मैं गया, जब मैं ढूंढ के, बस में हम जाते थे, तो जब मैंने ऑफिस ढूंढ के ऊपर मैं चढ़ा, अब सोचिए कि मुझको राइट लेग में पोलियो है, और मैं 3री मंजिल चढ़ के जब मैं पहुंचा तो ऊपर एक मिस्टर पियोन थे, ठीक है। वो बोले कि क्या क्या किस लिए आए हो? मैं कहा भैया रुक जाओ, चढ़ तो ले दो, पूरा सांस ले दो, फिर मैं बताता हूँ मैं किस लिए आया हूँ। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं ये फार्म भरा, पूरा जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था, मैं उसको तैयार करके लाया हूँ, इसको मैं जमा करना है, और बताइए जमा कैसे। वो बोलता जा जाओ भाग जाओ, साहब नहीं है, साहब आएंगे तो फिर आना। मैं कहा साहब फिर आएंगे? कह रहा हमें नहीं पता साहब कब आएंगे। तो वो छोटी सी चीज थी। मैं स्टूडेंट था और हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं लौट के फिर 3 मंजिल नीचे उतरा, और उतर के मैं अपने घर। तो फिर हमने कुछ प्रयास किया कि इसको हम समस्या, ये तो समस्या हो गया। 3 मंजिल जब हम चढ़ के भी गए, हमने फॉर्म भाग दौड़ करके जमा भी कराया, भरा भी उसको, लेकिन जमा नहीं हुआ। तो फिर मुझे राय मिला कि क्यों ना इसका हम कंप्लेन कर दें चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज। तब नया नया एक चीफ कमिश्नर का अपॉइंटमेंट था, मैडम तुली चीफ कमिश्नर थी वहां। तो हमने प्लेन पेपर पर चिट्ठी लिखा, और वो चिट्ठी हमने स्पीड पोस्ट कर दिया। उस स्पीड पोस्ट चिट्ठी के बाद जो वहां से एक नोटिस आया, उसमें लिखा था कि अगर 12 दिनों के अंदर आप इस इश्यू को एड्रेस नहीं करते हैं तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि जो जिलाधिकारी थे समाज कल्याण विभाग के, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो चिट्ठी की कॉपी जैसी वहां पहुंची होगी, मेरे तुरंत फोन बजने लग गए मेरे कि आप आके मिलिए, आके मिलिए। फिर मैं गया वहां मिलने। मैंने उनको कहा कि अब देखिए, अब तो मैं 3री मंजिल नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि अब मैंने कंप्लेन किया है और इस कंप्लेन पे आपको एक्शन लेना है, मैं 3री मंजिल नहीं चढ़ूंगा। तो वो व्यक्ति भी बड़े अच्छे थे, सज्जन व्यक्ति थे, शर्मा जी थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। वो उतर के नीचे आए, उन्होंने मुझे बोला बताइए भोला जी क्या आपकी समस्या। मैं कहा देखिए ये सिंपल चीज है, ये फॉर्म मैंने जमा कराने आया हूँ, और जानकारी है वो सुगम होनी चाहिए विकलांग व्यक्तियों के लिए। आपका ये ऑफिस ऊपर नहीं होना चाहिए। कह रहा नहीं होगा, मैं आज ही ऑर्डर निकाल दूंगा, जो विकलांग व्यक्तियों की समस्या होगी उसके लिए नीचे एक स्पेशल डेस्क में बना दूंगा, और उस डेस्क तक ही विकलांग व्यक्ति को आना होगा, किसी को एक सीढ़ी भी नहीं चढ़नी होगी। और अगर मेरा स्टाफ नहीं होगा, और वो मैं अपना नंबर भी नीचे छोड़ूंगा, अगर कोई व्यक्ति मुझसे डायरेक्ट फोन करना चाहे तो मैं नीचे आके उसका फार्म या उसकी समस्या हल करूंगा। तो एक छोटी चीज मुझे लगा कि हमने एक प्रयास किया और ये छोटी सी व्यवस्था बदल गई। उसके बाद हम जैसे स्कूल में थे, और भी हमने स्कूलों में जो हमारे यार दोस्त पढ़ते थे, हमने मैसेज दिया कि वहाँ फार्म जमा हो रहे हैं, आप सब लोग जमा करा के लाओ। कुछ 1800 रुपए मिलते थे 1 साल के। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म जमा कराया, और उसके बाद किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि उसको ऊपर जाना पड़ा है, ऊपर जाने की समस्या हुई। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा छोटा सा काम हमने किया, लेकिन उसका प्रभाव जो पड़ा, ऊपर ऑफिस शिफ्ट होकर नीचे आ गया, नीचे एक डेस्क बना दिया गया, और जो क्लास 1 अधिकारी थे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर छोड़ा कि विकलांग व्यक्ति को कम से कम वहां समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। आपने कहा समय की कमी है, आपने कहा कि एडवोकेसी की जरूरत कब पड़ती है, तो सुदीप्ता जी ने बताया कि हमें स्कूल से ही एडवोकेसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जो माहौल है वो अभी शायद इतना अच्छा नहीं है विकलांगता के संदर्भ में, क्योंकि हार्डली 1% भी बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं जो विकलांग हैं आज भी। और उसके हिसाब से हायर स्टडीज की तो सब स्थिति जानते हैं। हम रोजगार की बात करें तो 0.28% से ज्यादा लोग रोजगार में भी नहीं है। तो हम सबको ऐसा कलेक्टिव प्रयास करना है, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले लोगों को, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा सिखा दें ताकि सभी लोग रोजगार से कहीं ना कहीं जुड़ पाए। गुड। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा सोनू भोला जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप जो अपने करियर या अपने लाइफ की शुरुआत, या फिर आप अपने सेल्फ एडवोकेसी की शुरुआत किया, तो कोई और भी बदलाव आज के जमाने में आया हो? मैं तो देखता रहता हूँ, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, तो और कोई विशेष अभी बदलाव आया हो, कोई नया बदलाव? देखिए, जो मैं आपका अपना 2 मिनट में अपना परिचय, जैसे कि मैंने
1995 में मैंने 8th पास किया, 99 में मैंने 10th पास किया, 2001 में मैंने 12th पास किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, साथ साथ मैंने नौकरी शुरू कर दिया और मैंने 2011 में MBA HR एंड लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैं देखता था कि सब व्यक्तियों का तनख्वाह बढ़ता था, मेरा तनख्वाह नहीं बढ़ता था। मैं प्राइवेट सेक्टर में 12-15 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझको ये मालूम नहीं था क्योंकि हमने दुनियादारी इतनी देखी नहीं थी। पढ़ाई के बाद तो मैंने ITI शाहदरा से स्टेनो में टॉप किया 2001 में स्टेनो इंग्लिश। तो लेकिन फिर भी हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। तो मैंने किसी जनरली हम लंच पे या किसी मौके पे स्टाफ से बात करते हैं, तो एक हमारे यहाँ फाइनेंस मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सोनू तुमने किया क्या है? मैंने कहा जी बीकॉम किया है। और फिर पूछा कि सोनू तुमने किया क्या है? मैंने कहा जी बीकॉम किया है। उन्होंने तीसरी बार यही सवाल किया कि सोनू तुमने इससे ज्यादा क्या किया? मैं कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, वो भी ओपन स्कूल से किया। बोले इससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक ग्रेजुएट पास आप होके कितनी तनख्वाह की आप एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आपको फ्यूचर में बढ़ना है तो आपको पढ़ाई बढ़ाना होगा, अगर आपको फ्यूचर में कुछ और पाना है तो आपको अपनी एजुकेशन भी उसी हिसाब से बढ़ाना होगा। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैंने IIT कैंपस दिल्ली से ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस में मैंने कोर्स किया। तो मेरा 2006 में मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था जहां मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये था, और 2014-15 तक मैं एक INGO में जॉब करता था जहां मेरी तनख्वाह 40,000 था। तो ये बदलाव जो आया वो मेरी पढ़ाई से आया, मेरे जो हमने सेल्फ एक्वायर्ड स्किल्स थे उससे आया, और सोसाइटी में जो माहौल, जो जैसे आप कहा कि हम एक्टिव हैं थोड़ा, तो उस एक्टिव होने से भी आया। होता क्या है कि हम जैसे देखते हैं अपने आसपास में, तो जो चीजें हमें प्रभावित करती हैं, आई थिंक मींस वी कांट चेंज द वर्ल्ड बट वी कैन चेंज आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जो समाज में जो हमारी दुनिया का हिस्सा है, छोटा हमारा आस पड़ोस है, उसको हम बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो उस बदलाव के लिए हमने दिल्ली सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं, जिससे आप UDID कार्ड ले लें, या स्वावलंबन योजना आई थी स्वास्थ्य का, उसका ले लें, अभी सुगम भारत अभियान, उसमें दिल्ली में काफी सारा प्रयास हुआ। दिल्ली सरकार के अंदर जो 1500 से 2500 पेंशन हुआ, मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व था। हमने धरने प्रदर्शन किया, हमने उसके लिए मिनिस्टर्स लेवल से मीटिंग किया, 3-4 हाई लेवल। अभी भी हम 5,000 मांगते हैं। तो ऐसे अभी एक विशेष चीज जो आ रही है, जो पेरेंट्स के लिए और इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी के लिए काम के लिए होने वाली है। दिल्ली सरकार एक डायरेक्टरेट ऑफ डिसेबिलिटी लेके आ रहा है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया था उसके बाद में कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष विभाग होगा। बड़े सारे राज्यों में है एज पर एक्ट, दिल्ली में नहीं है, अभी होगा। तो उस एक्ट उससे क्या होगा, हर एक विकलांग व्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जिला स्तर पे। हर एक विकलांग व्यक्ति के लिए एक स्पेशल RCI क्वालिफाइड वेलफेयर ऑफिसर होगा, जो उसकी समस्याएं इंडिविजुअल सुन के कस्टमाइज सोल्यूशन देने की वो प्रयास करेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली सरकार के शायद अंदर होने वाला है। तो ऐसी काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस करें, काफी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरा अंत में ये कहना है कि विकलांग व्यक्ति को, और अगर विकलांग बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप जेब में पैसा नहीं है, आपके पास 4 लिंक नहीं है, लेकिन अगर आपको कानून की जानकारी है तो कम से कम अपना जो छोटा दायरा है, अपना छोटा हिस्सा है, उसमें आप बदलाव जरूर कर पाएंगे, केवल चिट्ठी और पत्र से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात आपने कही सोनू भोला जी। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि सोनू भोला जी की जो कहानी है वो एक सेल्फ एडवोकेसी से बढ़कर आगे एक कलेक्टिव एडवोकेसी की कहानी बन चुकी है। इनके जो प्रयास हैं सिर्फ वो इनको ही फायदा नहीं दिलाता, बहुत सारे अन्य दिव्यांगजनों को बहुत सारे ऐसे कानून या कोई प्रावधान रूप में बदलाव की बात करता है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो आपने डेवलप किया, क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से जान रहा हूँ, तो जो आपके डेवलपमेंट का जो ग्रोथ का जो चार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने जो ये चीज हासिल की है वो अपने सेल्फ एडवोकेसी से हासिल की है। आप उसके बारे में समझे हैं, आप उसके बारे में महसूस किए। जो मेरा पहला पॉइंट था वो सोनू भोला जी आपने उसको बड़े अच्छे से किया कि हमें सबसे पहले जानना होगा हमें किस चीज की जरूरत है, और हमें ये भी समझना होगा कि हमारी जो वो जरूरत है वो क्या पूरी कर सकती है। जैसे आपकी जरूरत आपका एजुकेशन पूरा कर सकता था, वो जानना इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड थर्ड थिंग इज कि हमें उस चीज को बोलना पड़ेगा, हमें उस चीज के बारे में कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। ग्रामीण परिवेश से हम आते हैं, ठीक है, जी। और मैं आज भी आई एम द ओनली ग्रेजुएट पर्सन इन माय फैमिली। और फैमिली की जब मैं बात करता हूँ तो 100 लोग की फैमिली है, ठीक है। उसको सरकारी स्कूल में पढ़कर, ठीक है, उसके बाद फिर हमने ओपन से मैंने
बीकॉम पास किया। तो हमने ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जब हमने नौकरी शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी और समस्याएं दिखते हैं, डीटीसी बस में घूमना, पास नहीं बनना, डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनना, हमारा लोन नहीं होना, हमारा स्कॉलरशिप नहीं जमा होना, कोई हमें सीट नहीं देना। आप सोचेंगे, कैन यू बिलीव कि एक बस कंडक्टर ने ड्राइवर ने मुझे उतार दिया, नहीं आगे से नहीं चढ़ने देंगे, आप पीछे चढ़ के आइए। मैंने तो सिंधिया हाउस में कंप्लेन किया 2005 में। तो आप कोई लोग जो बसों में सफर करते होंगे, जो पुरानी बसों में सफर किया होगा, उसमें लिखा मेरे कंप्लेन के बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने ऑर्डर इशू किया कि बस के ऊपर लिखा होगा कि बुजुर्ग व विकलांग को आगे से चढ़ने दें, तो अकेले मेरे लिए नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते चले आए हैं पिछले 10, 12, 15 साल के अंदर। लेकिन बात और आधार यही है कि अगर हम थोड़ा बहुत जागरूक थे, थोड़ा बहुत अवेयर थे, तो आज हम शायद बहुत सारे लोगों को हम अपने साथ जोड़ के उनको कुछ शायद कुछ सलाह दे सकते। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने कहा। मैं थर्ड हमारे जो आज के सेल्फ एडवोकेट हैं नितिन तनेजा जी, मैं उसके पास जाना चाहूंगा। लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं एक चीज को और हाईलाइट करना चाहूंगा। हु इज अ सेल्फ एडवोकेट? जो स्वयं की वकालत करने वाला कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समवन who says what they think and feel, what who speaks up to things they believe in, who knows and understand their rights and responsibility, who takes responsibility for their own life, who makes decisions that affect their life, who helps to improve their life, who tries to change the way things are done. So अगर हम सेल्फ एडवोकेट कौन है इसके बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें ये सोचना होगा कि उस व्यक्ति का जो सोच है सेल्फ एडवोकेसी उस पर निर्भर करता है। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो किन चीजों के बारे में बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जो वो अपने अधिकार और जिम्मेदारी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनके बारे में समझ उनकी है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और वह व्यक्ति सेल्फ एडवोकेट है जो स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने जीवन के लिए निर्णय लेते हैं और वह अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हो सकता है कि कभी कभी हमें मदद लेने के लिए दूसरे की भी सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन हम अपनी कोशिश कभी भी नहीं छोड़े। वही सेल्फ एडवोकेट है, वही सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बातचीत को कह सकता है। तो जो हमारे पास एक उपाध्याय जी का क्वेश्चन था कि कौन सेल्फ एडवोकेट है, क्या चीज उसके प्रकार है। सेल्फ एडवोकेट के कोई प्रकार नहीं है, सेल्फ एडवोकेट का एक स्किल है, एक सोच है, उसको हमें आगे बढ़ाना है कि हमारी सोच है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे हमारे डॉक्टर देसाई सर ने कहा कि सेल्फ एडवोकेसी सिर्फ दिव्यांगजनों की ही जरूरत नहीं है, वो हर किसी को जरूरत हो सकता है, माता पिता को भी, आम लोगों को भी सेल्फ एडवोकेसी की जरूरत है। तो मैं नितिन जी के पास जाना चाहूंगा। नितिन जी, हु मेक्स डिसीजन इन योर लाइफ एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स यू बिलीव इन। नितिन जी, आप ये हमें बताइए कि आपके जीवन में आपके लिए निर्णय कौन लेता है और आप कब से उन चीजों के बारे में बातचीत करना शुरू किया जिसके बारे में आपको विश्वास होता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, उसके बारे में बताइए नितिन जी। क्या इसमें सर, I take my decisions responsibly myself, and but what happens is I give priorities to my family and friends who are close to me. जो मेरे नजदीक हैं उनको मैं प्रायोरिटीज देता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, जो मेरी लाइफ है वो सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, मेरी फैमिली भी है उसमें, सब जो मेरे क्या कहते हैं साथी हैं वो सब जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रायोरिटीज में देता हूँ सबको। खासकर मेरी फैमिली हो गई तो उनकी बात सुनता हूँ। मेरे डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ लेकिन अपनी फैमिली को जरूर सुनता हूँ कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। और ऑब्वियसली विद द टाइम, आई मीन व्हेन आई गॉट माय, मतलब जब मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे जो है वो मैंने अपने जो है जिन चीजों में विश्वास करता हूँ। अपने सेकंड चीज क्या बोली सर? आपका विश्वास किस चीज पे है? आप कैसे सोचते हो कि जो सेल्फ एडवोकेसी आप कर रहे हो या जो चीज आपको चाहिए वो कैसे आपको मिलता है, कहां से मिलता है? सेल्फ एडवोकेसी सर, एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं खुद ही डिसीजन लेता हूँ सारे। वेरी गुड। और
हाँ, ये बाकी ये होता है कि अपनी फैमिली वालों से जरूर पूछता हूँ मैं कि ये चीज ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। पूरी फैमिली जुड़ी है मेरी मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। ये चीज है। और एक चीज जो होता है, जो वाइटल, मैं अगर कहूं कि आप जो निर्णय लेते हैं, तो क्या आपके परिवारजन, जो आपके दोस्त हैं, जिसको आपने क्लोज सर्कल में रखा है, क्या वो खुश होते हैं आपके निर्णय से या नहीं होते हैं? बहुत खुश होते हैं सर, फैमिली भी बहुत खुश होती है। अब जैसे मेरा डिसीजन है, क्या कहते हैं, मैं वॉलंटियरिंग बहुत करता हूँ, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे हो। तो मुझे कहती इट इज गुड दैट यू डू सोशल वर्क अ लॉट, बट यू शुड आल्सो थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप सोशल वर्क कीजिए, लेकिन आप और भी काम साथ में। तो मैं अपने जो इनर हायर ट्रुथ है, मैं अपने जो अंदर जो मेरा जो क्या कहते हैं, कोई डिसीजन लेना हो तो क्या कहते हैं, जैसे एक मैंने देखा कि कोविड के टाइम पे जॉब्स जा रही थी काफी, तो मेरा एक माहौल ऐसा था कि मैंने ये नोटिस किया कि नहीं, जॉब्स के लिए करना है कुछ। तो जॉब्स के लिए फिर मैंने ग्रुप बनाया, लोन के लिए काफी पानी, तो मैंने डिसीजन बनाया कि लोन के लिए भी ग्रुप होना चाहिए ताकि सबको गाइडेंस मिले जो दिव्यांग जन है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अब डिसेबिलिटी एडवोकेसी है, उसमें भी मैंने एक ग्रुप बनाया और खास लोगों रखा, चाहे कोई वॉलंटियर हो, लॉयर हो, पूरी इंडिया से काफी लॉयर हैं मेरे ग्रुप में, और या फिर जो सरकारी ऑफिसर हैं, उनको भी रखा मैंने। तो मेरे डिसीजंस जो हैं वो सब मैं अपने आप फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि जो की जरूरत है, जिससे क्या कहते हैं अच्छा हो सबके लिए, फिर वो मैं एक्ट करता हूँ उस चीज में। और मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट देती है मुझे और काफी खुश है मुझसे। लेकिन मुझे ये भी एडवाइस मिलती है कि आप वॉलंटियरिंग करते हो तो क्या कहते हैं, आप अपना नुकसान करते हो। आपको जो है काफी वो होना चाहिए, सेल्फ फोकस होना चाहिए। ये मेरे अंदर है कि मैं अपने दिल की सुनता हूँ, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि क्या कहते हैं, सब चीजों का ध्यान रखूं ताकि दोस्त भी खुश रहें, फैमिली भी खुश रहे। अब मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में हूँ, इनेबल इंडिया के प्रोजेक्ट डिस्कवरी, तो उसके लिए मुझे कहते हैं कि नहीं करना चाहिए आपको, मुझे बोलते हैं। मैं उसके लिए लोगों के पास गया कि इस तरह का प्रोजेक्ट है और दिव्यांग, हमारे पास सोल्यूशन भी, उसका बैंक बन रहा है पूरा। उस बैंक से क्या होगा कि किसी को भी उस तरह के सोल्यूशन, मैं डिटेल में जाऊंगा तो काफी लंबी बात हो जाएगी। तो मैं पहुंचा लोगों के पास कि ऐसे जूम मीट करना है, तो लोग कहते हैं कि एक ने मुझे कहा कि ये बिल्कुल आप, तो इसमें मतलब किसी ने कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे आप, वॉलंटियरिंग करना ठीक नहीं है, कोई मतलब काम नहीं आता। लेकिन मेरा अपना डिसीजन ये था कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि इससे जो है मैंने समझा कि इसी से काफी फायदा मिलेगा जो दूसरे डिसेबल लोग हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ऐसा था। वेरी गुड। नितिन जी, आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? लोगों को थोड़ा बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम होता है, किस प्रकार से आपको दिक्कत होती है, कहाँ दिक्कत? मैंने सर पहले बताया है, बहुत बार बताया है मैंने, आपके मशवरा में भी बताया है। आज खास करके हमारे लोगों को बताइए। जी सर। सर मेरा 1994 में मिक्स हेयरिंग लॉस का हो गया था, मिक्स हेयरिंग लॉस। तो होली फैमिली है एक हॉस्पिटल यहाँ पे, वहां पे मैं एडमिट हुआ था। तो डॉक्टर ग्रीश ने मेरा किया था ट्रीटमेंट, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस उन्होंने ठीक कर दिया था, बट सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस का मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। तो फिर उन्होंने बाद में उन्होंने ये, नितिन आप हेयरिंग एड लगाना शुरू कर दो। तो 1999 से मैंने हेयरिंग एड लगाना शुरू कर दी, फिर 2011 में मैंने दोनों कानों में लगाना शुरू कर दी। तो मुझे सीवियर हेयरिंग लॉस है एंड आई एम सजेस्टेड टू वियर BTE hearing aid, which is a big hearing aid, but I use this according to my जैसा मुझे ठीक लगता है, मैं उस हिसाब से यूज करता हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ। और एक चीज और है कि मैं कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए भी एलिजिबल हूँ, कि मेरा इतना ज्यादा हेयरिंग लॉस है, आई डोंट गेट स्पीच क्लियर विद हेयरिंग एड्स वेल, आई स्ट्रगल विद हेयरिंग एड्स। तो मैंने एक बार ऑडियोलॉजिस्ट से बात करी थी, हेड थी, दो ऑडियोलॉजिस्ट है उस समय, तो मुझे अच्छे से बोला था। उन्होंने कहा दोनों कानों में नितिन कॉक्लियर इम्प्लांट कराओ, क्योंकि आपका हेयरिंग लॉस बहुत है। तो मैं हेयरिंग एड अभी निकाल दूंगा तो मुझे अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। गुड।
बट आप बहुत ही अच्छे हैं। और जो एक वॉलंटरी वर्क करने की बात कही, वॉलंटियर बनने की बात कही, और आप ऐसे वॉलंटियर हैं जो दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप हमें भी अपने क्लोज सर्कल में रखिए, और मैं क्लोज सर्कल में आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप दूसरों की मदद करते रहिए, जिससे दूसरे को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलता रहे और आप आगे बढ़ते रहिए। मैं अपने जो ऑडियंस है, मैं उनसे उनका माइक में खोलना चाहूंगा। विजय कुमार सिंह जी, आप अनम्यूट करें एंड यू वांट टू से समथिंग। विजय कुमार सिंह। मोहम्मद खाजा मयूद्दीन। ओके। या जी सर। सर मैं नितिन जी से एक चीज कहना चाहूंगा। इन्होंने जो कॉक्लियर इम्प्लांट की बात की है कि आई डोंट नो व्हाट इज हिज एज, जैसे मेरे को लगता है ही मस्ट बी 30-35 इयर्स ऑफ एज, 40 अराउंड, या अराउंड 40 होंगे। तो अगर ये हियरिंग एड छोड़ करके कॉक्लियर इम्प्लांट पे जाते हैं तो ही विल हैव टू लर्न टू लिसन थ्रू द कॉक्लियर इम्प्लांट। तो उसके लिए जो है इनको एवीटी का ट्रेनिंग कराना पड़ेगा। और अभी ये कुछ बातें जो है हियरिंग एड से सुन करके समझते हैं, कुछ लोगों के फेस को देख करके समझ जाते हैं, लिप रीडिंग करने से समझ जाते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद में लोग बाग ये कहते हैं कि आप लिप रीडिंग बिल्कुल बंद कर दो, टोटली डिपेंड ऑन हियरिंग। तो जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा उसमें ही विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर ये हियरिंग एड्स के साथ में कंफर्टेबल हैं तो इनको कॉक्लियर इम्प्लांट पे जाने की जरूरत नहीं है। मे बी आई मे बी रॉन्ग, मगर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कॉक्लियर इम्प्लांट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू विल लूज ऑन नियरली 3 months ऑफ टाइम टू लर्न टू लिसन टू द कॉक्लियर इम्प्लांट। ग्रेट सर। क्योंकि ऑपरेशन के बाद में 2 weeks या 3 weeks के बाद में वो स्विच ऑन करते हैं, तो वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते आप एक कान में सिर्फ हियरिंग एड लगा के सुन सकते हैं, दूसरा कान आपका बिल्कुल बंद रहेगा। उसके बाद में 3 महीने की या 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है, उनकी ऑडिटरी वर्बल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको अलग अलग साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना सुनाएंगे, स्पीच साउंड्स को सुनाएंगे। तो वो टाइम लगता है। तो उस पीरियड में आपका काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इफ यू आर कंफर्टेबल विद हियरिंग एड्स, प्लीज स्टे विद देम, उनको अच्छा मेंटेन रखिए। थैंक यू। ओके, नवोदय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट से कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए मैडम, क्या बोलना चाहते हैं? Sir, myself Neha Bharadwaj. Yes, and I am a teacher as well as a social worker too, and this is my own trust, Navodaya Integrated Development Society. Beside this, I work for several other organizations also as a volunteer. Okay sir, so the thing is I'm also a physical challenged person, but due to an accident, I met with an accident in 2010 when I fell from a height and I got spinal cord injury. Okay, so due to which I have to use wheelchair for most of the time. Okay, then I went for physiotherapy treatments also for 2 to 3 years. My parents invested money, or I would say that they did this for me and arranged a physiotherapist at home, and I was able to walk with the help of support. But last year itself again I had fracture in my right leg, and now I'm using wheelchair. Okay, the thing is, when I met with this accident, I was not mentally well. I was not feeling well mentally. I was having some intuitions, some different sort of feeling at that time. ठीक है, और उसी सिचुएशन में मेरा ये एक्सीडेंट हुआ। फिर एक्सीडेंट के टाइम पर जो है, मतलब जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो उसके बाद भी मुझे वही इंट्यूजन्स और वही ड्रीम्स वगैरह आना, मतलब वो कम नहीं हुआ। फिर आई वेंट टू इभास, जो इभास है यहाँ पर शादरा में, तो वहां जाकर मैंने उनको बताई अपनी सारी प्रॉब्लम। तो मतलब दे स्टार्टेड मेडिकेशन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी फॉर मी, एंड बिसाइड दैट दे सेड मतलब कि कुछ मतलब पास्ट में कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मतलब आपको ये ड्रीम्स जो भी आते हैं या कुछ इस तरह का रहा। ठीक है सर, पर इसकी वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से, सिंस आई वाज बेड रिडन फॉर अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 years, फिर उसके बाद थोड़ा फिजियोथेरेपी की वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। मैं वॉकर के साथ से और
जो वो होते हैं कैलिपर्स होते हैं, उनकी हेल्प से मैं थोड़ा मोबिलिटी मेरे अंदर आई, ठीक है। तो लेकिन जो फैमिली का एटमॉस्फेयर था सर, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होना शुरू हो गया, ठीक है। और मेरे ब्रदर्स के साथ में मेरे रिलेशंस मतलब इतना ज्यादा फ्रेंडली बिफोर एक्सीडेंट भी नहीं थे, तो एक्सीडेंट के बाद वो रिलेशंस वर्स्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब आई वाज इन बेड, नाउ आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मैं मोबिलाइज नहीं हो सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उनको लगा बस नाउ हर लाइफ इज ऑलमोस्ट डेड, एंड हम लोग जो हमारा मन चाहेगा वो हम बोलेंगे और जो हमारा मन चाहेगा वही हम करेंगे, ठीक है। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो हेल्पलेस बिकॉज इट इज देयर ओल्ड एज एंड दे कांट स्पीक अगेंस्ट द ब्रदर्स, बिकॉज होता है सबको बुढ़ापे की चिंता होती है कि आगे चल के उनको भी बुढ़ापा आना है, और चाहे कुछ भी हो, अब मैं तो वैसे भी नहीं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ क्योंकि आई एम डिसेबल्ड नाउ, ठीक है। अपना कर लूं वही बहुत बड़ी बात है। तो उनको वो कहते हैं कि हम लोग इन के ऊपर डिपेंड है और हम तुम्हारे लिए वी कांट फाइट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, तुम्हें जो करना है तुम अपने आप ही करो, ठीक है। फॉर कभी कभी वो डोमेस्टिक वायलेंस की हाइट इतनी मतलब ऊंची थी, इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मुझे आई हैड टू अप्रोच टू पुलिस ऑल्सो, ठीक है। आई कॉल्ड सेवरल टाइम्स द 100 दैट कि मुझे यहाँ से किसी ऐसी जगह ले चलो जो कि मेरे रहने लायक हो, जो कि आई एम द बोन ऑफ कंटेंशन, सारे राड की जड़ मैं ही हूँ, तो मेरा ही यहाँ से मूव करना मतलब ठीक है। तो बट एवरी टाइम मतलब 100 नंबर ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, ठीक है। वो लोग आते थे, देखते थे कि पिटाई हुई है इसके साथ, हाथापाई हुई है, ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा रूडली बिहेव हुआ है, और घर के हालात मतलब ठीक नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस की हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट स्टिल व्हाट दे डिड इज कि आप यही रहो, यहाँ के अलावा आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप जैसे ही हैं आप इन्हें भुगतो, आप इन्हें झेलो, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वेयर इज द सिस्टम, कहाँ सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस सिचुएशन में कोई बंदा क्या कर सकता है, आप मुझे बताइए। मतलब जब उनको ये था कि भाई फिजिकली चैलेंज्ड है, फिर वो बोले भाई तुम ऐसे मतलब इस हालत में हो तो तुम्हें कहीं नहीं रखा जा सकता। उसके अलावा जो है जब उनको ये पता चलता था कि भाई ये इबास से ट्रीटमेंट ले रही है, मैं खुद जाती थी वहां पे काउंसलिंग वगैरह लेने, क्योंकि मेंटली मतलब मैं ठीक नहीं समझ रही थी अपनी दिमागी हालत को। ये सपने आना, ये इंट्यूजन्स आना मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने खुद मेडिकेशन शुरू की वहां से इबास से जाकर। तो वो बोले तुम ना मतलब दिमागी तौर से तुम पागल हो, चूंकि इबास का नाम मेंटल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, तो बोले तुम पागल हो और मतलब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम यहीं रहो। तो मतलब मैं आपको बताऊं मतलब कई बार ये गोकलपुरी थाना, हमारे घर का गोकलपुरी थाना पड़ता है, तो वहां पे भी मतलब जो ऑफिशियल्स थे जो in chat I am getting that sent to Manovikas only. Please sir, sorry to disturb you please. हाँ जी बोलिए कौन? ये बोलिए। हाँ जी, तो मैं यही कह रही थी कि वेयर इज द सिस्टम सपोर्टिंग अस, हमें Yes. सिस्टम कहाँ सपोर्ट कर रहा है। मतलब आई फील अ लॉट वेरी मच हेल्पलेस व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस अराइज इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई फील रियली वेरी हेल्पलेस इन दीस सिचुएशंस। मेघना जी, आपने एक एनजीओ बनाई है, वो एनजीओ किस काम के लिए कर रहे हैं, क्या काम करते हैं उस एनजीओ के थ्रू? जो हाँ जी, आपका कोई संस्था, जिस संस्था के लिए सर मेरा नाम नेहा भारद्वाज है, मेघना नहीं है। हाँ जी, और हाँ जी आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है? हाँ जी, ये नवोदय इंटीग्रेटेड, इसमें ना हमारे मोटिव्स मतलब अभी हेल्थ केयर सर्विसेज के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग जगह जगह पर हमारा प्लान है कि हेल्थ चेकअप कैंप्स हम लगाएंगे, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स और ब्लड डोनेशन कैंप्स, ठीक है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है, दूसरा एक सर्वधर्म हितार्थी समुदाय है जिसमें पीस अमंग ऑल रिलीजन्स, ठीक है। तो मतलब सभी रिलीजन्स को हम रेस्पेक्ट करें, सभी को समझें, और मतलब इस सोशल हार्मनी के लिए है ये सर्वधर्म हितार्थी समुदाय, ठीक है। और तीसरा हमारा, हाँ जी बोलिए। नेहा जी, आपने कहा कि सिस्टम क्या है, तो मैं ये बताना चाहूंगा सिस्टम की शुरुआत आपने कर दिया है जी। जो आपने एक सोशल वर्क के लिए और समाज को कुछ देने के लिए निकले हैं। जी जी जी। जो भी आपने कठिनाई अपने लाइफ में झेली है, जो भी कठिनाई आपको हुई है, उसको देखते हुए आप सोचते हैं कि दूसरे को भी ये कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जी, तो उसके लिए तो आपने जो मुहिम स्टार्ट किया है वो बहुत ही अच्छा है। और जी, दूसरी जी. बात है कि अगर जब हमें इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी अगर हमें कोई चीज महसूस होता है,
तो जी हमें जी प्रॉपर लीगल एक्शन लेने की जरूरत होती है, हमें लिखित में लीगल तो एक्शन आई हैव डन सर, आई हैव डन मेनी टाइम्स। मैंने खुद पर्सनली, जब मैं वॉकर से चल रही थी तो मैंने खुद पर्सनली जाके गोकलपुरी थाने में रिटन एप्लीकेशन दी। फिर मैंने कोई उसमें एक्शन नहीं नाम भी, उसमें क्या है, जो एसएचओ सर है ना, उन्होंने तो मेरी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व करने का उन्होंने सोल्यूशन कर दिया। जो मतलब मैं कह रही हूँ आपसे कि जो बी ग्रेड और ए ग्रेड ऑफिसर्स हैं वो जेन्युइन है, बट जो ये लोअर स्ट्रेटा के लोग होते हैं, जो ये कांस्टेबल्स होती हैं, ठीक है, और जो ये मतलब एसआई वगैरह होते हैं, एक हुकुम सिंह नाम का एसआई था, तो जो लिस्ट मैंने उसको नामों की दी थी, उसने उन लिस्ट के ऊपर एक्शन न लेके केस जो है मेरे और मेरे फादर के बीच में ही कर दिया कि फादर वर्सेस डॉटर। अब बताइए मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, जबकि फादर ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में हम आपको प्रॉपर अभी कोई इस तरह का कानूनी सलाह नहीं दे सकते, लेकिन जी, यस जी। हमारे पास जो एडवोकेसी के सिस्टम है, हम लोग भी जी। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करते हैं, हमारी संस्था करती है, तो जी, जो जी, जी। हमारे लीगल एडवोकेट्स होते हैं वो प्रॉपर रास्ता दिखाते हैं, और वहां पर जी, हम जी। आपको प्रॉपर रास्ता दिखा सकते हैं। जहां तक जी, सवाल जी। रहा कि आपको क्या किसने क्या कहा, कैसे कहा, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली देयर इज, आई विश, क्योंकि मेरी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो गई है ना सर। अब बिफोर एक्सीडेंट आई वाज अ टीचर। आपको प्रॉपर सहायता की जरूरत है, आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल सहायता कहीं जरूर सीख कीजिए। विनय जी आपको कुछ कहना, मैं आपको आधा मिनट दूंगा, 30 सेकंड। हाँ, मैंने कहना है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। एडवोकेसी की जहाँ तक बातें हैं, बहुत बातें होती हैं सर, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग सारे ही जितने भी पेरेंट्स हैं, जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो जानकार हैं, जो जिन्हें पता होती है, वो तो लड़ते हैं जी, बाकी तो 80% लोग तो लड़ते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। हम लोग सबको बताते भी हैं, सबको, हर पेरेंट्स को बताते हैं, और मैंने बहुत सारे मतलब पेरेंट्स को इस लायक, मतलब मैं मतलब अपनी वो बात नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने काफी पेरेंट्स को इतना मतलब जानकार बना दिया है, क्योंकि हमारा एक ग्रुप चलता है। हम उस ग्रुप में बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत बिना मतलब बिना उसके ही बात करके हेल्प करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज भी हम एडवोकेसी करते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? हमें सिर्फ धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई है सर। हम लोग हाँ बहुत जी। बातें करते हैं, हम लोग बहुत बोलते हैं, बहुत हम ग्रुपों में जुड़े होते हैं, हर आदमी बहुत बातें करता है, लेकिन कहाँ है आज एजुकेशन? कहाँ है आज इंश्योरेंस? कहाँ है आज मेडिकल? कहाँ है आज यूडीआईडी कार्ड? कहाँ है मेडिक्लेम? कहाँ है वोकेशनल ट्रेनिंग? कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? हर आदमी, स्पेशल बच्चा धक्के खा रहा है। वास्तविकता यही है। बस जी हम कहने को कुछ भी कर लें, हम कितनी बातें कर लें, हम लोग बहुत लड़ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप जी। लड़ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लड़ रहे हैं, लेकिन और सच्चाई मतलब कई बार तो यही ऐसा होता है, हाँ, पेरेंट्स भी चाह कर भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चे की। आज की तारीख में भी बहुत से बच्चों को पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत से उनके हस्बैंड है, वो भी एक्सेप्ट अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे। नहीं करते। ये एक हमारी लड़ाई है, जो बहुत ही लंबी लड़ाई चलेगी। आलोक जी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत सारे काम मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन बदला कुछ नहीं है। बदला यही है कि हम लोग थोड़े बहुत अवेयरनेस में आ गए, और इसके अलावा बस तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस का, वो तो कहीं ना कहीं हमने हासिल किया है। उसके लिए हमें तो अपने आप को जरूर बधाई का पात्र समझना चाहिए कि कोई ना कोई डेवलपमेंट तो हुआ है। गुप्ता सर, मैं जस्ट आई टेक हाफ मिनट फ्रॉम सुदीप्ता जी, आधा मिनट फ्रॉम सोनू भोला जी, और आधा मिनट फ्रॉम नितिन जी, ठीक है? कि मैं आप लोगों से जो फाइनल रिमार्क्स है वो जानना चाहूंगा। सुदीप्ता जी, व्हाट यू वांट टू से एट द एंड, कि आप फाइनली क्या बोलना चाहेंगे? सुदीप्ता जी, या yes Sudipta ji, yeah, you unmute yourself, unmute, yeah, please. We have to first feel barrier free society where disabled person can lead their life according to their choice. And my request to every parent, every teacher, at the age of 11 and 10, being a special educator
एक्सपीरियंस आपको अपने बच्चे को कैसे देना है, उनको क्या चाहिए, जो हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। Suppose for an example like that, ऑटिस्टिक बच्चे को इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझते हो, आपको कैसे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टुडे which color dress you want to wear, you wear white or blue. Option we have to give them options for choice and make them decision उनको लेना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपके पापा हैं तो मैं फिर से पापा को बुलाना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर वो बता दें क्या बताई आपने। हैं पापा जी यहाँ? या yes, thank you once again. Thank you, sir. Yeah, actually please, he wants to tell that there is a stigmatic barrier, so it is a negative mindset that has been created in the authorities. Very good. Not to accept the genuine demand or the rights with this PWD, persons with disability. Whatever they want to speak, because they are not easily accessible to them, they are simply ignoring them. And so far as the schemes and the provisions are being made at the government level or appropriate level, they are simply in a paper things. It is never analyzed whether the benefit is actually reaching the persons for whom it is made or not. It is not being analyzed. So what Sudipta wants to emphasize is, so that the barrier, psychological barrier with a negative mindset should go, and for that awareness has to be created, and prospective analysis from the bottom to top, whether the scheme has been, for those whose schemes has been prepared, they are getting actual benefit, and how far they are being well placed in the society with and living a life of dignity and self-respect. Very good. That has to be ensured. Very good. So ultimately we need most vital thing. Yeah, great sir, great. Ultimately we need to create the mindset. अभी जैसे नेहा जी ने कहा, सुदीप्ता जी ने कहा, विनय भाटिया सर ने कहा कि हमारे माइंडसेट में बदलाव की बहुत जरूरत है, लेकिन उससे भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो फ्रीडम की बात है. So the freedom is important to be able to make your choice, make your think about your own life. So there is someone who should give you, be an authority in your life. Maybe somebody can guide in your life. लेकिन जो डिसीजन है वो तो आपका होना चाहिए, आपके डिसीजन का वेलकम होना चाहिए. So the life you should be able to make the decision which affect you. और साथ में हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स आपको सहायता करें, आपको आगे बढ़ने के लिए बातचीत करें, या जो कानून है वो आपको सहायता कर सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग हमेशा और हमेशा वो आपके हाथ में होना चाहिए. तभी आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप सेल्फ एडवोकेसी को अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो जीवन में अगर एक स्वतंत्रता एक बुनियादी जरूरत है और यह हमें सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण विकल्प है. अगर हम व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुरूप हम अगर उसको कुछ करना चाहते हैं, उसको कोई विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं, या जैसे कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो वहां पर अधिकार की बात आती है कि अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास योग्यता है, तो जरूर वो अधिकार आपको मिलना चाहिए. तो इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कि जब भी आप कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी या किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करिए, सबसे पहला जो डोमेन है वो उसको फ्रीडम होना जरूरी है, उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है उस व्यक्ति के लिए. एटलीस्ट माँ बाप को मैं देखता हूं, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को छोटे छोटे घर में जो छोटी छोटी बातें होती है उसमें भी डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोत्साहन नहीं देते. जैसे उस बच्चे को क्या खाना है, आज क्या पहनना है,
बच्चे का चॉइस वहां पर गुल हो जाता है। बच्चे की जो बातचीत है वहां पर जो पहला स्टेप है एक फ्रीडम ऑफ चॉइस बनाने का, वहीं पर हम ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। तो कभी इस स्थिति में क्या होता है कि वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर उस व्यक्ति के पेरेंट्स को आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें की झेलनी पड़ती है। तो मैं सोनू भोला जी के पास जाऊंगा कि व्हाट आर योर स्पेशल स्किल्स। आप तो बहुत बड़े अच्छे इंडिया में अगर मैं देखता हूं तो बहुत अच्छे सेल्फ एडवोकेट हैं सोनू भोला जी। तो आपको लगता है कि क्या स्किल्स की जरूरत होती है, और क्या आप अपना सपना देखते हैं कि आप अपने लाइफ में कहां तक पहुंचना चाहते हैं? आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूंगा। जी सर। मेरा सपना है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी हो इंडिया में, है ना, जहाँ पे विकलांग और सकलांग दोनों बराबर हो। और उस सपने को हासिल करने के जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं, एक मुहिम को हमें एक मुहिम मानना चाहिए। इस मुहिम का ये मशवरा भी एक हिस्सा है कि हम देश में जागरूकता लाना चाहते हैं। कोई ये उम्मीद करे कि मुझको क्या मिलेगा तो वो घर बैठे ज्यादा बेहतर है, बजाय कि वो सोशल सेक्टर में हो। दूसरा, श्री राम जी ने आह्वान किया था जब पुल बनाना था श्रीलंका पहुंचने के लिए सारे जीव जंतुओं का कि आप आए, हम मेरी मदद करें। उन्होंने किसी भी जीव जंतु या प्राणी को इंडिविजुअल नहीं बुलाया। तो जो छोटी छोटी मछलियां थी समुद्र के अंदर, उन्होंने तय किया आपस में मीटिंग करके कि हमें तो श्री राम जी ने बुलाया नहीं है और हम इतनी छोटी हैं कि हम करेंगे भी क्या। लेकिन उन्हीं मछलियों ने आपस में तय किया कि जो भी वानर सेना के जो साथी हैं, जो लोग हैं वानर सेना, वो जो भी पत्थर फेंक रही है, वो डूबना तो है ही नहीं है, लेकिन वो फैले नहीं, तो कम से कम उस पत्थर जो पुल बनाया जा रहा है उसके दोनों ओर हम चिपट जाएं सारी लाखों करोड़ों मछलियां, ताकि वो पत्थर का बिखराव नहीं होगा। और जब श्री राम जी अपनी सेना के साथ उस ओर जाएंगे लंका की ओर, तो उनको जाने में आसानी होगी। तो उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ियों में जब लोग सोचेंगे कि जब श्री राम जी ने मंदिर बनाया था तो वो ये श्री राम जी ने लंका पार किया था, तो लोग ये ना सोचें कि उन मछलियों ने भी कोई हिस्सेदारी ना निभाई जो समुद्र का पानी पीती थी, खाती थी और पीती थी। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हम सबको एक एक छोटा छोटा एक लेश मात्र भी अगर हम कोई प्रयास करते हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो फायदेमंद जरूर हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने कहा कि अगर हम प्रयास ही ना करें और सोचें कि सरकार हमारे पास वो सुविधा ले आएगी, या जो कभी नहीं लाए, किसी ने कहा कि कागज पर है, कागज पे तो सरकार ने दे दिया है स्कीम, आप उसको कब अप्लाई करते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हैं तो जरूर वो आपको मिलता है। सर, दिल्ली के अंदर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 2,86,831 लोग विकलांग हैं और केवल 65,000 लोग ही पेंशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के लोगों के पास विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है आज तक, जबकि 31 हॉस्पिटल के अंदर सर्टिफिकेट बनता है। तो वही है कि मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, घर पे ही बैठा रहूंगा कि कोई आए मेरा बना देगा, शायद ही कोई आएगा। वही तो है कि हम वो जो दिव्यांगजन है, क्या वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात है उनको ये पता है कि नहीं कि हर सुविधा को लेने के लिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट जरूरी है। तो अगर हम ये छोटे छोटे कोई भी स्टेप्स लेते हैं कि हम उसको अगर अवेयर कर देते हैं कि आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जरूरत है, आप दिव्यांगता सर्टिफिकेट कहाँ से लेते हैं, तो हो सकता है उस अवेयरनेस पे अगर वो व्यक्ति कोई स्टेप लेता है तो उसको भी जो भी पेंशन है या जो भी स्कीम्स है उसका लाभ उसको मिल सकता है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत होती है। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहता हूं कि एक सपोर्ट सिस्टम है, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है वो एक सपोर्ट सिस्टम है, और इस सपोर्ट सिस्टम में हमें ये देखना है कि व्हाट द गोल यू वांट टू अचीव, आप क्या करना चाहते हो। बहुत ऐसे जगह पे ऐसा होता है कि हमारा गोल ही क्लियर नहीं होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, बीइंग ए नॉन डिसेबल्ड पर्सन, हमें अपने आप को सबसे पहले उस डिसीजन पे आना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, तब हम सेल्फ एडवोकेसी स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन। आपने जो गोल लिया है वो सच होगा या गलत होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना होगा। अगर आपने सपोज कहा कि हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत है और आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लिए, तो आपको अगले कड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी कि हमें इसको लेकर पेंशन ऑफिस में जाना है जहां से पेंशन मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट बनाकर हम घर में बैठ गए और पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया और हम सरकार को कोसना शुरू कर दिए कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, हमने सर्टिफिकेट भी बना लिया। तो इस तरह से हर स्टेप में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी बहुत जरूरी है। एंड यू नीड टू ट्राई टू मेक द बेस्ट चॉइस एंड फिक्स दोज दैट डिड नॉट वर्क। आपको ये बहुत ही बेस्ट चॉइस बनाना है। जो चीज नहीं हो रहा है
उसको कैसे फिक्स करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे, उसके बारे में भी आपको काम करने की जरूरत है। और आपको जो लाइफ है, वॉट एवर द लाइफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ। अगर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अगर मैं सुदीप्ता जी के पेरेंट्स को देखूं तो उन्होंने क्या कहा, उनके लिए बेटी बहुत इंपॉर्टेंट था, बेटी का एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ही डिड द लॉट ऑफ केस, लॉट ऑफ एफर्ट्स, जिससे कि आज उनकी बेटी एक एग्जाम्पल बनी हुई है। एक सिर्फ उनकी बेटी को ही फायदा नहीं हुआ, पूरे कंट्री में उस प्रोविजन से फायदा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, सोनू भोला जी ने अगर कहा कि हमें अगले गेट से बस में चढ़ना है, तो उन्होंने उस पर एफर्ट किया, और एफर्ट करने के बाद सिर्फ उन्हीं को फायदा नहीं हुआ, आप आने वाले और भी जनरेशंस, आने वाले और सभी लोगों को फायदा हुआ। तो सेल्फ एडवोकेसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ सोचेंगे और उस पर एक्शन नहीं करेंगे तो वो बहुत हम सेल्फ एडवोकेसी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर हमने सोच लिया, उस पर एक्शन कर लिया और वो वर्क नहीं हुआ, तो हमें और भी अगला एक्शन करना है कि वो वर्क कैसे करे। तो इस तरह से सेल्फ एडवोकेसी एक चेन सिस्टम है। आप अगले आते आते क्या होगा कि हम एक बहुत बड़ा चेन बना सकते हैं। तो मैं नितिन जी के पास जाना चाहता हूँ। नितिन जी, आप किस चीज पे विश्वास करते हैं और अपने जीवन में किन किन काम को करने में सक्षम है, जो लगता है कि कोई नहीं कर सकता, वो काम आप करते हैं? मैंने पिछले एपिसोड में आपका एक एग्जांपल सुना था, तो अगर आप बताएं कि आप कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि वो कर लेते हैं, लगता है कि वो बहुत ही काबिल तारीफ काम है। सर, यू आर नॉट ऑडिबल। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? Yeah. आ रही है? अब आई? I can listen. अब आई? ओके, इन द मीन टाइम सर, गुप्ता सर, फिर सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। या अब आई आवाज नितिन जी? अब आ रही है। एक सेकंड। हाँ, जी, मैं लिख रहा था, मैं अभी 1 मिनट, एक सेकंड रुकिए। जी, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। कोई नहीं, आप टेक योर ओन टाइम। हाँ सर, ये एक्चुअली मैं चैट बॉक्स पे लिख रहा था। आपकी कुछ आवाज ही नहीं आ रही, आप बताइए। जी, बोलिए सर। अब आपको अंतिम में क्या कहना है वो बोलिए। What you want to say in the last word, final words? मैं एक चीज यही बोलना चाहूंगा लास्ट में सर, कि सेल्फ एडवोकेसी जैसे आप कह रहे हैं कि आदमी क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और क्या करना है उसका निर्णय आदमी को बनाना चाहिए। मैं नेचुरली हूँ इसमें, जो भी मैं करता हूँ, ठीक है, जनों के लिए करता हूँ, लेवल पे करता हूँ, सब नेचुरली करता हूँ। एक मुझे विनय सर की बात जो मैं मानता हूँ, विनय सर ने अभी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी डिसेबिलिटी को। तो वो चीज मैं मानता हूँ। तो ये जो क्या कहते हैं अवेयरनेस है, ये जो लड़ाई है, ये बहुत क्रूशियल है और बहुत डिफिकल्ट लड़ाई है, क्योंकि इसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी भी बात करें तो मुझे भी जो है सपोर्ट मिला है काफी, आपको भी सपोर्ट मिल रहा है, आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ये जो हम एडवोकेसी कर पाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, चाहे मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, इसमें सबका सपोर्ट जरूरी है। आपने भी शुरू में उस सेशन में बोला था कि मैं अपनी वाइफ के साथ, जैसे भी आप शुरू करते हैं, आपने बोला था, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि सबको सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था आज, जब मैं पहले बोलने लगा तो आपने जो लिखा था उसमें मैं कंफ्यूज हो गया, तो इस वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पाया। एक मैं जेसी गुप्ता सर को कहूंगा कि सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कॉकलियर इम्प्लांट मुझे नहीं कराना चाहिए, मैं भी पसंद नहीं करता उसको, काफी महंगा भी होता है। लेकिन मेरे इस वाले कान में, लेफ्ट कान में टिनाइटस हो, बहुत तेज आवाज होता है, शोर होता है, इस वजह से मैं थोड़ा सोचता हूँ चलो यार कॉकलियर इम्प्लांट कराने चाहिए, क्योंकि मेरे कान में 24 घंटे होता है ये चीज है। वो नहीं नितिन जी, वो नहीं जाएगा। आप उसके लिए ना ENT चेकअप कराइए अपना, एंड दे विल सजेस्ट यू। आपने ENT जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है ना, उसकी वजह से टिनाइटस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ग्रोमेट डाला होगा कान में आपके। तो वो एक बार आप चेक करा लीजिए, तो वहां से आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा।
नंबर एक। नंबर दूसरा जो है, जिस कान में आप हेयरिंग एड लगाते हैं ना, टिनाइटस जिसमें होता है, उसकी वॉल्यूम वो हेयरिंग एड लगा होता होगा तब नहीं होता होगा, हेयरिंग एड उतारने के बाद में होता होगा। तो उस कान में आप सोने से पहले ही हेयरिंग एड उतारिए, अदरवाइज मत उतारिए। वेरी गुड। नितिन जी, मैं और सजेस्ट करूंगा कि गुप्ता सर से आप आके भी मिल सकते हैं हमारे मनोविकास में। एंड इट्स वेरी नाइस कि आप तीनों ही जो हमारे आज के तीनों ही जो they were very excellent and they are the examples of self advocacy। मैं आपको जो बताना चाह रहा था ये एग्जाम्पल है। और मेरे पास एक सवाल है, वो है कि दिव्यांग जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं वो अपनी बात नहीं बता पाते हैं और वो वकालत कैसे करेंगे, वो अपनी वकालत कैसे करेंगे। मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है वो जन्मने के साथ वो ये नहीं बता पाता कि हमारा अस्तित्व है। अगर हम ये बता पाते हैं कि मेरा अस्तित्व है तो हम कुछ बोल रहे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो तभी वो रोता है। रोना उसका इस पृथ्वी पर एक आना सिंबल है कि हम आ चुके हैं, मेरा अस्तित्व है। इसी तरह से हर व्यक्ति का, जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, या वो बौद्धिक रूप से हो या ऑटिज्म हो या बोल नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। वहां पर जैसे हम देखते हैं कि हमने दिव्यांग जन के बारे में अगर हम उनको नहीं समझ में आता तो हमने साइन लैंग्वेज बना दिया। क्या हमने खुद साइन लैंग्वेज सीखा या नहीं सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो साइन कर रहे हैं, दिव्यांग जन अगर अपनी कोई बात बता रहे हैं, तो उनके भी लैंग्वेज को सीखने का हमें स्किल्स होना चाहिए। और जब हम कोई पेरेंट्स एक रिग्रेशन फेज से हम लोग, गुप्ता सर मैं उसमें आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। वी शुड डू वन मशवरा कि जो पेरेंट्स का जो रिग्रेशन है, जो पॉज है कि वो रुके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसका एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो अगर हम बढ़ा दें तो बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। तो गुप्ता सर मैं एक मशवरा तो आपके साथ स्पेशल पेरेंट्स, थैंक यू। वहां पर मैं देखता हूँ कि जो जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है कि बौद्धिक दिव्यांगजन नहीं बता पाते, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर पेरेंट्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि हम उसकी बात को समझें और फिर उसकी बात को दूसरे को बताएं जब वो कोई नहीं समझ पाता हो। आपने सुदीप्ता के केस में देखा होगा कि सुदीप्ता की बात अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके पापा जी उनकी बात को समझकर हमें बता रहे हैं। तो हमें इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान में रखें तो हम हर व्यक्ति की बात को समझ सकते हैं, हर व्यक्ति के सेल्फ एडवोकेसी के बारे में बात कर सकते हैं। सो वी वुड लाइक टू टेल यू वी आर कमिंग अगेन ऑन द नेक्स्ट एपिसोड on Mental Health Day, and it is on Saturday 10th October with new topic on mental health, and we are going to celebrate our Golden Jubilee episode, 50th episode of Mashwara very soon on October 14th. So please follow us. We are bringing you a very bright huge number of gifts, 500 gifts, prizes, certificates, and please join us in a regular basis. We have the 3 categories of award. One is the Mashwara Award. Mashwara Award is if you have participated in the 40 episodes, and you can share us your certificate through our website. You go to the mashwara.live. This is our website. There you can get the form. वहां पर आपको फॉर्म मिलेगा अवार्ड्स के बारे में, सबके बारे में। वो फॉर्म भर के आप अटैचमेंट के साथ हमें भेजिए. We will select you. And then other award is the Mashwara Affiliate Award. That there you require the 30 certificates. Then Mashwara Recognition Award. If you have the 20 certificates of Mashwara, you can apply for that Mashwara. And then the Mashwara Volunteer Award. It is very important. आप सभी हमारे वॉलंटियर्स हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ ये शो करना होगा कि आपने हमारे लिए क्या क्या वॉलंटियरिंग की है. अगर आप हमारे मशवरा एपिसोड्स के बारे में बातचीत किया है, मशवरा एपिसोड के बारे में कोई सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया है, या फिर आप और किसी के साथ इसके बातचीत किए, तो आप हमें जरूर लिखिए और हम आपको एज ए वॉलंटियर रिकॉग्नाइज करेंगे. तो प्लीज अप्लाई इट फॉर. एंड देन आई थिंक इट इज हमारे पास 8 अक्टूबर तक इसका डेट है. आप 8 अक्टूबर तक 8 अक्टूबर तक आप हमें भरिए और हमें भेजिए. देन वी आर अगेन मीटिंग ऑन द अक्टूबर 10th. इसी अगले आने वाले शनिवार को हम लोग मिल रहे हैं नए टॉपिक पे. एंड देन आई विल गो टू गुप्ता सर फॉर फाइनल रिमार्क्स. सर प्लीज. सर आज मैं वैसे तो मैं बहुत कम समय लेता हूँ, मगर आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, अगर हो सकता है 1-2 मिनट छूटअप हो जाए. कोई बात नहीं सर, प्लीज सर. सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि सेल्फ एडवोकेसी बर्थ से ही शुरू हो जाती है.
हम कहते हैं कि माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। अगर एक बालक चुपचाप बैठा रहेगा तो वो चुपचाप लेटा रहेगा, सोता रहेगा, तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। जब वो रोता है तो माँ चिंता हो जाती है। तो वहां से उसने सेल्फ एडवोकेसी शुरू कर दी कि रोऊंगा तो मुझे कुछ अटेंशन मिल जाएगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि हम बचपन से एडवोकेसी करते हैं। हमारे माँ बाप हमको जब कुछ पहनाना चाहते हैं, वी रिजेक्टेड एंड आई डोंट वांट दिस, मेरे को ये नहीं पहनना है, चाहे वो कोई भी बच्चे हो। इसी प्रकार से खाने में भी होता है। तो एक तो वो चीज हो गई। तो जब अगर हम सेल्फ एडवोकेसी की डेफिनेशंस की बात करते हैं तो दिस इज ए प्रैक्टिस speaking for oneself and controlling their own affairs rather than having non-handicapped people automatically assume responsibilities for them. अक्सर होता क्या है कि हम कहीं गए, बच्चा बोल सकता है, it takes, हमारे से भी जब कोई सवाल किया जाता है तो we take some time to speak. तो क्लिनिक में लेकर के गए, वहां पूछा बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तो माँ बाप फौरन बोल देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। Let the child speak for themselves. अगर हम अपने आप से अपने लिए बोलेंगे तो वो सेल्फ एडवोकेसी का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि सेल्फ एडवोकेसी के लिए मैं कुछ टिप्स, सोनू जी के सामने बोलना जरा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सीनियर आदमी है सेल्फ एडवोकेसी में, कि सबसे पहली बड़ी बात तो जो है कि यू शुड हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप में विश्वास नहीं है तो आप अपनी एडवोकेसी कर ही नहीं सकते। कि बिलीफ से मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं उसको करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, लर्न अबाउट योर राइट्स। हमारे को अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम है। अभी जो सोनू जी कह रहे थे कि 2 लाख से ऊपर 2,65,000 डिसेबल्ड पीपल हैं दिल्ली के अंदर, क्या एवरीबडी नोज अबाउट दी एक्ट? वो 7 से बढ़कर के 19 हो गए। उस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस हैं? कंसेशन एंड फैसिलिटीज गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से क्या दी जाती हैं? कोर्ट्स में क्या फैसिलिटीज हैं? चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी या स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज के क्या रोल्स हैं? उनके पास में हम जा सकते हैं। तो हमारे को अपने राइट्स के बारे में, एज पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हमारे को अपने राइट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारे क्या क्या अधिकार है। देन जब राइट्स हम जाते हैं तो गेट इन्वॉल्व। सिर्फ जान करके नहीं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता है तो उसको हमें बताना चाहिए, गेट इन्वॉल्व होना चाहिए। देन स्टार्ट स्मॉल। ये टिप्स मैं दे रहा हूं, ये नहीं कि बहुत बड़ा मुद्दा हम लेकर के चले, छोटे छोटे मुद्दे से करें। तो आप अकेले चलेंगे, लोग बाग आपसे मिलते रहेंगे तो आपकी एडवोकेसी और स्ट्रांग होती रहेगी। देन टीम अप विद अदर्स, गैदर इंफॉर्मेशन, try to find out people who have got the same problems with you as you are having, और उनके साथ आप टीम अप करके एक ग्रुप बना करके एडवोकेसी कर सकते हैं। देन सबसे पहले डिसाइड व्हाट यू वांट। होता क्या है, हम एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं, बोले ऐसा नहीं ऐसा होता, अच्छा ऐसा ही कर दीजिए, नहीं ये भी नहीं होगा ऐसा कर दीजिए, तो हम चेंज करते रहते हैं। नहीं, यू शुड बी फर्म, नहीं आई वांट दिस। जैसे सोनू जी ने कहा कि भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ के आऊंगा, तो उन्होंने नीचे ला दिया। तो आप अपनी चाहत, अपनी जो डिमांड है उस पर अड़े रहिए। प्लान स्ट्रेटेजीज, कि सीधे जाकर के हमको लड़ाई शुरू नहीं कर देनी चाहिए। हमको अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपनी योजनाबद्ध तरीके से अपनी चीजों को करना चाहिए। देन एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। आपको जो अपनी बात कहनी है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। देन बी फर्म एंड परसिस्टेंट। मैं पहले ही कह चुका कि जो बात आपने एक बार कह दी उस पर आप अड़े रहिए, परसिस्टेंट रहिए, उसको चेंज मत होने दीजिए। देन असर्ट योरसेल्फ क्लियरली, डोंट लूज टेम्पर। एडवोकेसी करते समय कीप योर कूल, शांत रहिए, कानून के अंदर रह करके बात कीजिए, शांति से बात करिए, जो आपको मालूम है वो बताइए। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा ये है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऑफिसर्स वहां बैठे हुए हैं वो उनको आप शांति से कानून के दायरे में रह करके बात करेंगे,
अगर एक ऑफिसर से नहीं करता तो उससे ऊपर वाला ऑफिसर है, उससे ऊपर वाला ऑफिसर है। सर आई डोंट नो वेदर आई कैन टेल दिस। और ये जो नेहा जी जो थी, उन्होंने कहा कि मैं कई दफा जाकर के यहाँ पर गोकुलपुर थाने में रिपोर्ट लिखा चुकी हूँ, तो उसकी एक कॉपी जरा डीसीपी के पास भेज दो ना, एक कॉपी कमिश्नर के पास भेज दो, चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी के पास भेज दो, एक कॉपी कमिश्नर डिसेबिलिटी के पास में भेज दो। देखो कैसे एक्शन हो जाता है। अगर नेहा जी मेरी बात सुन रही हो तो, कि जो रिपोर्ट लिखित में आपने क्या कहते हैं गोकुलपुर थाने में कराई है, उसकी एक कॉपी वहां का जो डीसीपी है उसको भेज दीजिए, और एक सीपी साहब को भेज दीजिए, बहुत अच्छे आदमी है, देखिए कैसे नहीं होता है। तो सर यही मैं कहना चाहता था कि सेल्फ एडवोकेसी के अंदर एक तो सवाल आया था कि मेंटली चैलेंज बच्चे किस प्रकार से अपनी एडवोकेसी करेंगे। Not all children with intellectual disability advocate for themselves. जो सीवियर केसेस हैं उनके साथ में उनका एडवोकेसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर एज पेरेंट्स हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताओं के लिए हम उनके अनुसार एडवोकेसी कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद माइल्ड मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन स्पीक फॉर देमसेल्व्स, तो हमको उनको आगे करके बोलना चाहिए। वहां पर एम्पैथी बहुत ज्यादा आ जाती है, और एम्पैथी जब आती है तो बहुत ज्यादा जल्दी काम होता है। सर इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा, आप मेरे को ये अवसर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अगर कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं सर, आप ज्यादा नहीं बोले, आप तो बहुत ही अच्छे शब्दों में बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। और मैं तो हमेशा आपके जो भी आपके वक्तव्य होते हैं, जो भी आपके विचार होते हैं, मैं तो उसको बड़े गौर से सुनता हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, और 2-3 चीज तो हमें निकल के बाहर आ ही जाती है। तो जैसे आज मैंने कहा कि एक हमें पेरेंट्स के लिए एक सेशन करना बहुत जरूरी लग रहा है, कि उनको रिग्रेशन से निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो रिग्रेशन से निकलेंगे नहीं, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बच्चे को, और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बच्चे को, तब तक हम उसके बारे में सेल्फ एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात बहुत जरूरी। जी सर 20 सेकंड और दूंगा। जी ये एक अमेरिका का किस्सा है। वहां पर एक हियरिंग इम्पेयर्ड लड़की थी, उसने क्वालिफिकेशन की, LLB की, उसके बाद में LLM किया। LLM करने के बाद में उनका एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द कोर्ट। वो एग्जाम उसने क्लियर किया। वो एक केस लेकर के गई, तो जज कहता है आई कैन डन, शी वाज टॉकिंग इन साइन लैंग्वेज, द जज सेड दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं नहीं समझ सकता, बट दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम, यू आर एइंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड मी। तो ये सेल्फ एडवोकेसी होती है। तो हमारे को अपनी स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा आना चाहिए कि अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, आप अरेंजमेंट करो मेरी बात समझने के लिए। यस, वेरी ट्रू। ये सेल्फ एडवोकेसी। Thank you, sir. Thank you for the thank you. So it is my pleasure and privilege to extend my heartfelt thanks on this 48th episode of Mashwara. On behalf of Manovikas family and Mashwara team and entire fraternity of institution, first of all, I extend my sincere thanks to Almighty God, and second thanks to all the internet and all the systems. And on my behalf, I extend very hearty thanks to our speakers, Madam Sudipta Mishra ji. Thank you very much for coming here and joining Mashwara. And thank you, Sonu Bhola. Always you are welcome in Manovikas. We love your thoughts. We love your action. So thank you very much. Thank you for coming in Mashwara. And Nitin, you are a great volunteer of Mashwara. I think Mashwara से ही हम लोग आपको जानना स्टार्ट किए हैं, और भी आने वाले समय में we will come to know about you. And thank you very much for coming in Mashwara as an speaker. आप आज वॉलंटियर से स्पीकर बन गए मशवरा के, so thank you, one step ahead. And thank you everyone for sparing your valuable time and gracing the Mashwara. And thank you for your very informative address, Gupta ji and Desai sir. And I must mention my deepest sense of appreciation कि आप जब भी आप कुछ गुप्ता सर यहाँ पर आते हैं और कुछ बोल के जाते हैं, चाहे वो आप बोलते हैं या देसाई सर, दोनों ही इतना मतलब कि होता है कि अगली कड़ी का निर्माण वहां से हो जाता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है।
So thank you all. And I must mention my deepest sense of appreciation to the volunteers. Big thanks to Adya, big thanks to Namo Narayan, big thanks to Amjad Hussain. Those who are volunteering, I personally told all of you, please share your feedback, share your message ki I am doing this kind of volunteering for Mashwara. I'll definitely take your name, or otherwise you can apply in our गोल्डन जुबली एपिसोड मशवरा वॉलंटियर के लिए, तो हम वहां पर टिकट से एटलीस्ट जरूर एक्नॉलेजमेंट करेंगे, हम अपने गिफ्ट से भी एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं. सो प्लीज अप्लाई फॉर योर वॉलंटियरशिप. Also, I also extend thanks to all my staff members for their enormous cooperation in organizing the episode of Mashwara. So Rakhi for sign language interpretation, and Kanishka for working on Facebook Live, Indra Madam helping in the Zoom, Nishtha, Susil, Dharamjit, Sangeeta Madam, Ruby Madam, Prakhar, all and each and everyone. You did very good job, and I'm very much fortunate enough to be backed by you all in Manovika's family. So we salute your motivation, we salute your dedication. Finally, the wonderful guests and participants, your active participation with such a great affiliation with Mashwara is very incredible. And I can say thank you so much for your active, very active participation. Thanks a lot. I have seen कि अभी भी हम देखते हैं कि हमारे जो भी शुरू में 200-300 लोग बने होते हैं, वो लास्ट तक उतने लोग बने होते हैं. So thank you everyone. You all are very much incredible, and thanks to all one who are directly or indirectly involved in this program. जय हिंद एंड धन्यवाद. मैं आप सभी को मशवरा एपिसोड में मेजबानी करने के लिए धन्यवाद और सम्मान करता हूं. हमारे वक्ता का सुदीप्ता मिश्रा जी, सोनू भोला जी, नितिन जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद. और आज के एपिसोड में जो हमारे गुप्ता जी की जो आज मैं सराहना करूं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है. एंड सभी का धन्यवाद. अंत में सभी सम्मानीय मेहमान, प्रतिभागी, सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत 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 धन्यवाद. आपका बहुत बहुत आभार. सो थैंक यू वेरी मच. हम लोग फिर मिलते हैं शनिवार को अगले नए एपिसोड में. और इस बीच में मैं आपसे कहूंगा, आप mashwara.live हमारे वेबसाइट पे जाइए. वहां पर आपको लिंक मिलेगा, आप क्या क्या चीज में अप्लाई कर सकते हैं. आप हमारे वॉलंटियरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, मशवरा अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन अप्लाई फॉर मेनी थिंग्स. यू कैन अप्लाई फॉर द क्विज. तो आप कहीं ना कहीं हमसे जुड़िए और फिर हमसे जुड़े रहिए. हम आपको ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट के साथ, नए नए विषय के साथ अवगत कराते रहेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. I am not opening today mic because I have to prepare for the Golden Jubilee episode. So thank you all. Thank you. मैं बात करूंगा Golden Jubilee episode के बाद, सबसे बात करूंगा. So मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों का हैंड रेज है. मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे आज कि मैं आप सबसे बातचीत करूंगा गोल्डन जुबली एपिसोड के बाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल. थैंक यू गुप्ता सर. थैंक यू नितिन. थैंक यू सोनू. थैंक यू ऑल. थैंक यू.